Hello students, I am Engineer Aparajita from Concepts Learning Classes. Today we are going to discuss about the class 9th topic, measurement and experimentation. So measurement we will study, in this measurement we will study about the units, system of units. For this we must know that what are physical quantities. Physical quantities are the quantities which can be measured. If anything which can measure, I need two things. One is the numerical value and other is its unit. Numerical value is called magnitude. Numerical value is called its magnitude, and the other thing is unit. If I will only write 5, then how could you say this is distance, this is speed, this is time? You cannot say anything about 5. But if I will write 5 seconds, then definitely you will recognize that I am talking about the time. That means unit is very important. So choice of unit is also very important. For that we need some comparison. So in measurement we always compare a physical quantities with the standard quantity. Like if I will say this distance is 1 meter, this distance is 1 meter, but aap bologe no ma'am, this is not 1 meter. You will, any other one will say no, this is 1 meter. So for that there must be a particular comparison, a particular prototype for which you can compare. No, this is only 1 meter and this must be universally accepted. So units are very important. So in this chapter we will study about what kind of units are there, how do we measure these things, how many systems were there for the units. So I can say there are two types of unit. You can say there are two types of unit. First is the fundamental units and second one is the derived units. What's the difference between them? Fundamental, only 7 fundamental units are there in the physics. Only 7 fundamental units. That means fundamental units are the units or the quantities which cannot be derived. They have their independent existence. That means they cannot be derived from the any other quantities. Example, अगर मैं 7 की बात करूँ तो you can say mass, length, time, temperature, current, amount of substance. One more there should be luminous intensity, which is not given here. Luminous intensity. So these units or these physical quantities and their units are the fundamental. Rest of them are the derived quantities. Rest of them, example, if I am talking about the speed, the unit of it is meter per second. That means speed is derived from the distance and time. Distance is the fundamental quantity, time is the fundamental quantity, but the speed is the derived quantity, because we can derive the speed from the distance and time, right? So speed is the derived quantity. Example is given here, like you can say volume, area. There are so many quantities, density, whatever quantity you can take, they all are derived quantity. We have only 7 fundamental quantities. The quantities are given here, the units are here, and the symbol is like this. So length is the meter, mass kg, time second, temperature Kelvin, luminous intensity candela, and electric current ampere, amount of substance mole. एंड रेस्ट ऑफ देम क्वांटिटीज़, मतलब इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने पढ़ी हैं, एरिया, डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, दे ऑल विल बी द डिराइव्ड क्वांटिटीज़. एंड यहाँ पे दो आपकी अलग से क्वांटिटीज़ दी गई हैं. दे आर नॉट द फंडामेंटल, बट हम इनको एंगल्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. एंगल एंड सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल 3D के एंगल्स होते हैं, तो इसकी यूनिट्स रेडियन एंड स्टेरेडियन होती है, राइट. तो हम सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर ले तो स्टार्टिंग में जो फ्रेंच सिस्टम हुआ करता था, दैट वाज अ CGS सिस्टम, मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड. इन दैट सिस्टम लेंथ वाज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास वाज इन ग्राम एंड टाइम वाज इन seconds. Next was the FPS system, was the British system. In that system mass was in pound and the time was in seconds. In the MKS system, MKS is almost like SI system, so many similarities are there. So in this system mass is measured in kg and length is in meter and time will be in second. And finally एक proper agreement हुआ है सारी इसके बीच में, तो उसके according जो system derive होके आता है जिसको हम लोग use करते हैं, that is our SI system, system of international. राइट। तो सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, दिस इज़ और एसआई सिस्टम जिसको हम प्रॉपरली आज यूज़ करते हैं इन फिज़िक्स
फॉर द यूनिट्स। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे इसमें प्रीफिक्सेस की। एंड बिकॉज हमें लेंथ को मैंने मीटर बोल दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें कभी भी कोई भी लेंथ मेजर करनी होगी तो वो मीटर में होगी। हो सकता है हमें कोई लेंथ मेजर करनी हो, वो बहुत छोटी हो, उसकी साइज़ बहुत कम हो, तो वो मीटर में मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज मीटर इज़ वेरी लार्ज। फॉर दैट वी नीड डिफरेंट प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। लाइक अगर मुझे स्मॉल लेंथ को मेजर करना है तो दैट में भी इन डेसी, सेंटी, मिली, नैनो, पीको। तो उन्होंने कई बार सुना होगा कि नैनोमीटर होता है, बहुत सारे बायो में भी पढ़ा होगा कि नैनोमीटर होता है जो उसका हेयर का साइज़ होता है, या सेल हमारी जो होती है वो माइक्रोमीटर, नैनोमीटर में होती है। तो माइक्रोमीटर हो गया, नैनोमीटर हो गया, दे आर वेरी स्मॉल यूनिट्स। तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो देखो 10 की पावर -1 यानी कि 1/10, 1/100, 1/1000 इस हिसाब से होता है। तो नैनो इज़ 10 to the power -9, माइक्रो इज़ 10 to the power -6, पीको इज़ 10 to the power -12। तो इस तरीके से हम स्मॉलर लेंथ्स को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रीफिक्स, बिकॉज मीटर इज़ अ बिग क्वांटिटी। अगर मुझे मीटर से भी ज़्यादा लेंथ को मेजर करना है तो हम उसके लिए बड़ी यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक जनरली अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करना होता है वी यूज़ किलोमीटर। तो किलोमीटर इज़ 1000 मीटर इज़ इक्वल टू द 1000 मीटर, और यू कैन से 10 to the power 3 मीटर्स। तो यहाँ पे जो लार्ज यूनिट्स दी गई हैं दैट इज़ फॉर द लेंथ। एंड जैसे डेका के लिए इंटू 10 कर दोगे, हेक्टो के लिए 10 स्क्वायर, किलो के लिए 10 क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग मेगा, कोई बड़े साइज़ की बात करते हैं तो मेगा हो गया, गीगा हो गया। जैसे तुम लोग हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ करते होगे, टेराबाइट, गीगाबाइट, 1 TB की हार्ड डिस्क है, तो दैट वाज 10 to the power, दैट इज़ 10 to the power 12। गीगा मीन्स 10 to the power 9 एंड मेगा मीन्स 10 to the power 6। सो यू ऑल कैन स्टडी दिस थिंग। दीज आर जस्ट द प्रीफिक्सेस ऑफ द लेंथ। अब मुझे अगर लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हुई है कि ये किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, इसकी हिस्ट्री दी है कि किस। तो एक्चुअली में स्टार्टिंग में क्या मानते थे कि जो प्लैटिनम इरेडियम का हमारे पास एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है दैट इज़ 90% प्लैटिनम एंड 10% इरेडियम। जब उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देते हैं तो जो भी डिस्टेंस बिटवीन द 2 मार्क्स होती है दैट इज़ इक्वल टू द 1 मीटर। उसको पूरा एक्सेप्ट किया गया था 1889 में कि हाँ ये डिस्टेंस 1 मीटर है। उसके बाद में उसको लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंग रीडिफाइन किया गया कि जो लाइट की स्पीड, हम सबको पता है लाइट की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स जो लाइट होती है 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो यू कैन से कि 1 मीटर क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्या हो जाएगा, यू कैन से दिस मच सेकेंड, दिस मच सेकेंड्स। 1 अपॉन इसका कर दोगे 1/3 × 10 to the power 8। यही यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 10 to the power 8 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी हुई है। तो लाइट के अकॉर्डिंग भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। और इसकी मैंने मल्टीपल यूनिट्स बताई थी तुम लोग को, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब यूनिट्स ऑफ द मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, किलोमीटर फॉर द लॉन्ग वैल्यू। और अगर मुझे सपोज करो कि कोई एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ करनी, किसी डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करना है, लाइक नॉन मीट्रिक यूनिट्स, हम लोग इसको नॉन मीट्रिक यूनिट्स कहते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी बिग यूनिट्स, दे आर यूज फॉर द हेवनली बॉडीज़, राइट। तो हेवनली बॉडीज़ के लिए हम किलोमीटर में भी नहीं मेजर कर सकते, वी नीड अ वेरी लार्ज यूनिट्स। फॉर दैट वी यूज़ द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर। सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सो दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। सन और अर्थ के बीच की जो मीन यू कैन से एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होगी दैट विल बी योर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 × 10 to the power 11। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 × 10 to the power 11 मीटर, राइट। दिस इज़ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। एंड लाइट ईयर इज़ ऑल्सो अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। हम लोग हेवनली बॉडीज़ के लिए भी इसको भी यूज़ करते हैं। तो लाइट ईयर इज़ द, लाइट ईयर इज़, ध्यान रखना बच्चे कंफ्यूज करके इसको टाइम समझ लेते हैं, बट लाइट ईयर इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज नथिंग बट द स्पीड इंटू टाइम। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10 to the power 8 होता है, और टाइम 1 ईयर में कितना टाइम हो जाएगा, 365 × 24 × 60 × 60। सो दिस विल बी द डिस्टेंस। You can convert it into the kilometer also. So this is light year. You can say light minute also, light second also. Then distance traveled by light in 1 minute, distance traveled by light in 1 second.
So you can define these types of length, units for length. And next is the parsec. Parsec हमारी ये भी हमारी एक unit होती है, ये भी हमारी heavenly bodies के लिए होती है. Is the distance from where the semi major axis of the orbit subtends an angle of 1 second. मतलब कि semi major axis का मतलब क्या है? देखो एक्चुअली अगर हमारी कोई चीज़ अर्थ अगर इस तरह से रोटेट करती है, वो एक्चुअल सर्कल में नहीं करती, वो इलिप्स में करती है. तो दिस एक्सिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस. तो सेमी मेजर एक्सिस ये वाली डिस्टेंस हुई O to A. दिस इज आर सेमी मेजर एक्सिस. तो अगर सेमी मेजर एक्सिस 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस सबटेंड कर रही है, डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारी होगी दैट विल बी माई पार्सेक. तो पार्सेक हमारी हमें पता है कि जो एंगल सबटेंड करती है वो हमारा ये जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी लेंथ अपॉन एंगल होता है. तो हमारा लेंथ अपॉन एंगल करोगे तो ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली जो आती है दैट विल बी 3.26 लाइट ईयर के इक्वल आती है. ठीक है. तो अगर एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आता है, एग्ज़ाम में तुम्हें सारी यूनिट्स की सारी पर्टिकुलर वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. दैट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तुम्हारी 1 AU कितने मीटर्स के इक्वल है. डायरेक्ट इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं. 1 पार्सेक कितने लाइट ईयर के इक्वल है. लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट करना तुम्हें आना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए. और एंगस्ट्रॉम इंपॉर्टेंट यूनिट है. एंगस्ट्रॉम इज़ वेरी स्मॉल चीज़, मतलब बहुत स्मॉल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. 10⁻⁻10 के लिए यूज़ होता है एंगस्ट्रॉम हमारा. राइट. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ को भी डिराइव कर सकते हैं. और अगर मैं इसके बाद में मास की बात करूं तो ये हमारा लेंथ कंप्लीट हो चुका है. लेंथ के बाद में अगर हम मास की बात करें तो मास को भी हम इसी तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं. तो अगर मास को तुम देखो तो मास की कौन कौन सी यूनिट होती है. अगर मैं SI सिस्टम में बात करूँगी तो SI में हमारी होती है किलोग्राम्स, ग्राम्स हमारी CGS में हो जाएगी. और इसके अलावा जो मास को अगर FPS पे बात करेंगे तो दैट विल बी इन पॉन्ड. बट हमें मेनली जो मास की बात करनी होगी तो उसको हम अगर स्मॉलर बिगर यूनिट में बात करेंगे. देखो यहाँ पे अगर सब यूनिट्स की बात करो तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, ग्राम्स आ जाता है. नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं बात करती हूँ मिलीग्राम आ जाएगा स्मॉलर यूनिट्स में. अगर मैं इसके मल्टीपल बिगर यूनिट्स की बात करूँगी दैट कैन बी क्विंटल एंड टन, मीट्रिक टन. तो क्विंटल इज इक्वल टू द 100 kg एंड द मीट्रिक टन इज द 1000 kg और यू कैन से 10 क्विंटल. नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ मास की बात करोगे, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं तो वो AMU और यूनिफाइड मास. तो हमारा दैट इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम. तो कार्बन 12 का जो मास होता है उसका 1/12, ये वैल्यू आएगी तुम्हारी 1.6 × 10⁻27 kg. दैट इज इक्वल टू द 1 AMU. ये वैल्यू हमारी केमिस्ट्री में यूज़ होती है. सोलर मास पता होना चाहिए. दैट इज़ द मास ऑफ द सन 2 × 10⁻30 kg. तो मास ऑफ द सन, इसको हम लोग सोलर मास, अगर हमें बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेविटेशनल की आगे स्टडी करनी पड़ती है तो उसमें हमें सोलर मास और इसकी जो डिस्टेंसेज हैं उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है. तो वहाँ रिक्वायर्ड होता है. तो अभी बस तुम लोग को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम में हमारे पास जो SI यूनिट हम सबको पता है कि उसकी यूनिट सेकेंड्स होती है. और सेकेंड्स को डिफाइन करने के लिए भी बहुत सारी डेफिनेशंस आई थी. तो एक डेफिनेशन क्या होती है तुम्हारी कि सेकेंड इज़ डिफाइंड एज द 1/86400th पार्ट ऑफ द मीन सोलर डे. तो मीन सोलर डे हमारा जो होता है उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 सेकेंड के इक्वल होता है. तो बहुत सारी इसके बाद और भी डेफिनेशन आई थी कि जो वाइब्रेशंस होती हैं उसका जो टाइम पीरियड होता है, cesium-133 एटम की जो वाइब्रेशंस होती हैं. बट दीज थिंग्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तुम्हें एग्जाम्स में पूछेगा बेसिकली 1 नैनोसेकेंड, पिकोसेकेंड डेफिनेशंस में पूछ सकता है कि ये किसकी इक्वल है, व्हाट इज़ मीन सोलर डे. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है, बिगर यूनिट्स इसमें गिवन है. टाइम की जो बिगर यूनिट है, वैसे तो मैंने सेकंड SI यूनिट होती है लेकिन हम जनरली इसको मिनट, आवर, डे, ल्यूनर मंथ, ये हम लोग मंथ, ये सारी सेंचुरी, डिकेड, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. लीप ईयर हम सबको पता है. लीप ईयर कब होता है, जब फरवरी में 29 डेज़ होते हैं. तो लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं. 1 ईयर में कितने सेकेंड होते हैं, इन सबको तुम कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर सकते हो. ल्यूनर मंथ हमारा क्या होता है, मून के अकॉर्डिंग जो हमारा पूरा मंथ कंप्लीट होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली हमारा 29.5 डेज़ का होता है. दैट इज़ माय ल्यूनर मंथ. सेंचुरी हम सबको पता है कि सेंचुरी हमारी 100 ईयर्स की होती है. इसके अलावा जो हमारी मेनली डिकेड होता है वो हमारा बेसिकली 10 ईयर्स का होता है. तो इस तरीके से हम क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये मेनली हमारी फंडामेंटल यूनिट्स थी लेंथ, मास एंड टाइम के लिए.
तो लेंथ, मास एंड टाइम हमारी सबसे बेसिक होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें डिराइव्ड यूनिट्स की, तो डिराइव्ड तो बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हो सकती है जो डिराइव्ड है। लाइक अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इंटू मीटर, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर। तो ये सारी यूनिट्स हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। दैट मीन्स हम ऑलरेडी इनको फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ वाई दे आर डिराइव्ड यूनिट्स। एग्जाम्पल, अगर मुझे वॉल्यूम की यूनिट निकालनी है तो L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि इट विल बी मीटर क्यूब। डेंसिटी की मास अपॉन वॉल्यूम, तो यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगी। ऑल SI यूनिट्स आर गिवन हियर। नेक्स्ट, अगर मुझे स्पीड की निकालनी है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी। एक्सीलरेशन की तुम निकाल सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो अभी तुमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज अभी पढ़ी नहीं होंगी, आगे के चैप्टर्स में तुमको पढ़ना है। फोर्स, वर्क, एनर्जी, मोमेंटम, टॉर्क, पावर, वर्क, सब कुछ पढ़ोगे तो इन सब की क्वांटिटीज़ तुम आगे कैलकुलेट करना सीख जाओगे। मतलब मेनली दीज आर डिराइव्ड, दीज आर ऑलरेडी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल वन विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इसके बाद में क्या है कि अगर हमें लास्ट में गाइडलाइंस दी गई कैसे हमें यूनिट्स लिखनी चाहिए, तो हमें हमेशा स्मॉल में लिखते हैं, लेकिन अगर किसी साइंटिस्ट का नाम होता है तो हम उसको कैपिटल में लिखते हैं। लाइक अगर मुझे न्यूटन लिखना है तो मैं कैपिटल एन से लिखूंगी न्यूटन, जूल लिखना है तो जूल लिखूंगी। लेकिन अगर मैं मुझे पूरा न्यूटन लिखना है, पूरा न्यूटन मतलब कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स में लिखना है, NEWTON, तो आई विल राइट इट इन स्मॉल। ठीक है, तो ये सब तुम लोग इसको रीड कर लेना। आई थिंक अब मैं स्क्रू गेज और इसके लिए वर्नियर कैलिपर्स के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगी, और तुम्हारा टाइम पीरियड बचा है, 2-3 चीज़ें बची हैं, उसके लिए आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट। थैंक यू।